Learners, how are you? I hope you are good and feeling better. Today's class is about the fun they had. Chapter in ninth class, book named Beehive, first chapter. We will discuss and try to understand the summary and explanation of this chapter, leaving the question answer for you to note down. If you need, then please join the Telegram Telegram channel in which you will get the answers of the questions of this chapter with their their explanations of exercise. The summary is the fun they had throws light on an interesting aspect of the technological world we will have in the future. Consequently, it is set in the future where two children discuss the way things functioned in the earlier days. Further, they talk about the books which comprise a paper instead of the telebooks. Telebooks are the laptops and the computers, and the children are being taught by the robots, not human teachers. They get fascinated by the concept of school, which prevailed in the days of their grandparents. Moreover, they also talk about how those days were much more fun. The fun they had thus shows us the reality of the technology taking over in the near future. मैं समरी आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। दो बच्चे होते हैं, मार्गी एंड टॉमी। फर्स्ट इंग्लिश में समझाता हूँ, दैन इन हिंदी। द स्टोरी बिगिंस विद टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी. It takes place in the world of the future where computers dominate everything. Moreover, it also shows how the concept of schools and classrooms has transformed completely. In 2057, there is Margie. She is writing in her diary about how Tommy found a book. This book was of Tommy's grandfather. Now you should remember one thing: who got found book? It was Tommy. Okay, it was Tommy. The book was whose grandfather? Whose grandfather? Tommy's grandfather. Okay, three concept you got. He was a little kid. Marky learns about how they used to print all the stories on the paper back then. Further, they read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny. It was funny because they were not in the habit of reading still words, only ones in motion that to on a screen. It means they were habitual to read and write on the screens, on the computers, on the laptops. We learned that in the future there are no books, only textbooks. They store them in TV sets and computers. After that, it takes an interesting turn when they discuss school. Margie learns that schools were very different back then. They had actual persons who were teachers. It is surprising because she has only robots which teach her. Now, अब मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। हिंदी में इसकी समरी क्या हो जाएगी, हिंदी में देखते हैं समरी, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समरी नोट डाउन करना भी आप लोगों को आना चाहिए। समरी कैसे लिखते हैं, अब मेन जितने भी पॉइंट्स हैं ना समरी के चैप्टर के, वो सब आप अंडरलाइन करते जाइए। उन सबको क्या कीजिए, नोट डाउन करते जाइए, कोई भी पॉइंट ना छूटे। मेन पॉइंट वही उसकी समरी हो जाती है। ट्राई कीजिए कि जो समरी वो 100 to 150 वर्ड्स में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर 130 120 है, इट विल बी
गुड। 160 हो जाती कोई बुराई नहीं, 110 होती है तब भी बुराई नहीं, लेकिन 90 होती तब भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हाँ कोशिश कीजिए कि बीच में होनी चाहिए। ना इन हिंदी ये जो बात है वो 17 मई 2057 के दिन की है, जब टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली थी। इसने इसे मार्गी को दिखाया। मार्गी 11 वर्ष की थी। हाँ ये इंग्लिश में बताना भूल गया, मार्गी 11 वर्ष की थी, 11 ईयर्स की थी, याद रखिएगा। इससे पहले उसने कभी भी रियल पुस्तक नहीं देखी थी। एक बार उसने दादाजी से वास्तविक छपी पुस्तक बारे में सुना जरूर था। ये पुस्तक बहुत पुरानी थी, जो बुक थी बहुत पुरानी थी। इसके पन्ने पीले और इसमें सलवटे तिरछे मुड़ जाते हैं, उस पर लाइनें आ जाती हैं, सलवटे आ गए थे। उन्होंने इसके पन्नों को पलटा और पढ़ा भी। टॉमी को सारी बात व्यर्थ सी लगी थी बातें। उनके पास छपी पुस्तक नहीं थी, उनकी पुस्तकें टेलीविज़न के पर्दे पर हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि उस जो ये कहानी फ्यूचर की है, तो उसमें क्या हुआ करता था, जो पढ़ाई है वो सब कंप्यूटर या फिर टेलीविज़न के पर्दे पर हुआ करती थी। तो टॉमी कितने वर्ष का था? टॉमी 13 वर्ष या 13 ईयर का था। नोट डाउन कहीं लिख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। मार्गी 11 वर्ष की थी, टॉमी 13 ईयर का था। मार्गी 11 ईयर की थी, टॉमी 13 वर्ष का था। जो टॉमी जो था वो अधिक बुक्स पढ़ चुका था अपने कंप्यूटर पे। टॉमी ने मार्गी को ये भी बताया कि पहले स्कूल हुआ करते थे। मार्गी ने हमेशा स्कूल से घृणा करती थी कि स्कूल बहुत बुरी चीज़ होती है। उसका स्कूल उसके एक घर पर एक कमरे में स्थित था। ये उसके शयन कक्ष से अगले कमरे में था। शनिवार रविवार को 2 दिन छोड़कर बाकी दिन उसके जो रोबोट टीचर थे वो पढ़ाया करते थे। उसे अकेले उसके सामने उपस्थित होना पड़ता था। ये तकनीकी शिक्षक, जो तकनीकी मतलब टेक्निकल जो टीचर थे, रोबोट, उससे गृह कार्य देता था, उसे चेक करता था, परीक्षा पत्र में उसे चेक करता था, उसके अंक देता था। सारा काम कंप्यूटर खुद ही करता था। मार्गी थी वो टेक्निकल टीचर्स टेस्ट देता। मार्गी इस बात से बहुत थक गई थी कि उसका जो टेक्निकल टीचर था, जो शिक्षक था मतलब रोबोट, वो बराबर उसे टेस्ट लेता रहता था। इस बात से उसे बहुत चिढ़ थी। मार्गी अपने क्लास में या अपने टेस्ट में खराब होती चली जा रही दिन प्रतिदिन। उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर बुला भेजा। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता था? एक ऐसा व्यक्ति होता था, ह्यूमन होता था, जो आता था, कंप्यूटर को चेक करता था और उसकी एज के अनुसार काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता था? काउंटी इंस्पेक्टर एक ह्यूमन टीचर होता था, जो कंप्यूटर को उस ढंग से सेट करता था जिस हिसाब से बच्चे की एज के अनुसार होना चाहिए, उसकी आईक्यू के अनुसार सेट करता था। 10 वर्ष के बच्चे के स्तर पर कर दिया गया था, जिस वजह से मार्गी को प्रॉब्लम आ रही थी। टॉमी ने मार्गी को बताया कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पुरानी किस्म के स्कूल हुआ करते थे। वे स्कूल विशेष किस्म के भवनों में स्थित थे। टॉमी ने मार्गी की सब बातें बताई। वहाँ अध्यापक थे, वहाँ बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ इंटरवल में, रिसेस में बच्चे खाना खाते थे, खेलते थे, कूदते थे और सारे बच्चे स्कूल में रहा करते थे। मार्गी थोड़ा कन्फ्यूज़ थी, अनिच्छापूर्वक कि कैसे कोई वहाँ रहता था। उसे तो एक कमरे के अंदर ही सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ उसको ये भी मालूम चला कि उसके जो टीचर थे वो अलग अलग पाठ पढ़ाते थे, मतलब कंप्यूटर के टीचर कंप्यूटर पढ़ाते थे, मैथ के टीचर मैथ पढ़ाते थे, साइंस के टीचर साइंस पढ़ाते थे, और वो सब ह्यूमन हुआ करते थे। ये बात उसके लिए बहुत सरप्राइज थी। चलिए अब हम समरी समझ में आ गई, हिंदी इंग्लिश में दोनों में। अब चैप्टर में समझते हैं, ठीक है, प्लीज़ ध्यान दें। Margie Bunn wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book in her diary. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, मार्गी के दादाजी ने कहा
था जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर, किसके, मार्की के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर टोल्ड हिम that there was a time when all stories were printed on paper। क्या बताया था कि उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि जब किताबों पर कहानियाँ छपती थीं। They turned the pages, वो पेज मोड़ते थे, खोलते थे, which were yellow and crinky। उन्होंने जब पेज खोला था टॉमी एंड मार्की ने, जो क्रिंकली मीन्स होता है फोल्ड्स और लाइन, जिसमें लाइन पड़ी होती हैं, क्या होती हैं, जिसमें लाइनें पड़ी रहती हैं और हल्के पीले कलर के हो जाते हैं। इट वॉज आ फुली फनी टू रीड वर्ड्स, ये बहुत ही कैसा था, अजीब मतलब मज़ा था। टू रीड वर्ड्स, जो शब्दों को पढ़ने में आता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, वो अभी भी रुके हुए थे जबकि मूव नहीं कर रहे थे। द वे दे वर सपोज टू, ऐसा जिस तरीके से वो उन्होंने सपोज किया था, क्योंकि वो कंप्यूटर पढ़ते थे, जो लाइन्स हुआ करती थी वो मूव आउट करती रहती थी, मूव इन करती रहती थी। क्यों? क्योंकि ऊपर जब माउस कर्सर से माउस के थ्रू वो क्या करते थे, लाइन को आगे पीछे करते थे, पैराग्राफ में इधर उधर कर्सर जा सकता है, उस तरीके से वो हैबिचुअल थे। बट उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि बुक्स भी होती हैं, वो बुक्स में वर्ड्स होते हैं वो एक जगह रुके रहते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पीछे बिफोर आए पेज के, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और वही शब्द फिर से इस पे है। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। देखिए इट हैड यहाँ पर हैड 2 टाइम्स आ रहा है। दिस हैड इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब ऑफ हैव थर्ड फॉर्म। आपको पता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और वो रखते थे, क्या चीज़ रखते थे, व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा था। सेकंड पैराग्राफ की सैड टॉमी ने कहा, ये एक्सप्रेशन से व्हाट अ वेस्ट, आप इसको छी से ले सकते हैं, क्या बात, कितनी अच्छी बात, व्हाट अ वेस्ट, कितनी ख़राब बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक के थ्रू जाते हैं, यू जस्ट थ्रू इट अवे, तो आप इसको थ्रू इट अवे, दूर फेंक देते। आई गैस, मैं ऐसा समझता हूँ। आ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, जो हमारे टेलीविज़न स्क्रीन है वहाँ पर लाखों बुक्स हो सकती हैं और ये अच्छी भी हैं और अधिक अच्छी हो सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, हम इसको फेंक नहीं सकते हैं। सेम विद माइन, मेरे साथ भी यही है, सेड मार्गी ने कहा। शी वाज 11 एंड हैड सीन एस मैनी टेली बुक्स एस टॉमी हैड, उसने बहुत सारी बुक्स देखी हैं जितनी टॉमी ने देखी हैं। इट मीन्स टॉमी ने थोड़ी ज़्यादा देखी हैं क्योंकि वो 11 ईयर की है, जो टॉमी है वो 13 ईयर की है। शी हैड ज़्यादा किसने बुक्स देखी, टॉमी ने देखी है, सिंपली बिकॉज शी इज़ 13 ईयर एंड शी इज़ 11 ईयर, ओनली 2 ईयर गैप इज़ देयर। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया था। इट मीन्स बुक्स, सॉरी बुक। इन माई हाउस, मेरे अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, उसने पॉइंट आउट किया बिना ऊपर देखे हुए, और क्या बताया, उसने अपने घर में पाया था, कहाँ, इन द एटिक। व्हाट इज एटिक, एक ऐसा प्लेस, आप छज्जा कह सकते हैं हिंदी में, जो हमारा रूम होता है, पुराने रूम जो बने होते हैं उसमें दीवार के ऊपर एक बड़ा सा टाण वगैरह बना होता है, छज्जा नहीं टाण वगैरह होता है, उसमें सामान वगैरह हम रख सकते हैं, ठीक है। जो नेसेसरी सामान होता है हम लोगों के ऊपर उसमें डाल दिया जाता था, उसमें कर्टन वगैरह फिर डोर लगा दिया जाता था, ठीक है। एटिक इन इंग्लिश अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम, ठीक है। व्हाट्स इट अबाउट, इसके बारे में क्या है, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी बहुत स्कॉर्नफुल हो गई थी। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है ऐसी फीलिंग जिसमें आपको चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्कॉर्नफुल। कॉन्टेम्पचुअस, शोइंग यू द समथिंग इज वर्थलेस, कि कोई चीज़ बेकार है। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने के बारे में बात हो रही है, स्कूल के बारे में क्या बात लिखने के लिए है। नाउ व्हाट्स इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से नफरत है। हु सेड, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब वो ज़्यादा नफरत करने लगी थी। बट वाई, द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, नोट डाउन करना,
ध्यान से समझिएगा। ज्योग्राफी में उसके सबसे ज़्यादा टेस्ट होते थे और नंबर उसके खराब हो रहे थे। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। जब तक उसके मार्क्स खराब होते चले जा रहे थे, जब तक कि उसकी माँ ने उसका सर शेकन हर हेड मीन्स उसके हेड शेकन हर हेड मीन्स यहाँ सर हिलाने से नहीं है, मीन्स इस बात को समझा और उन्होंने इंस्पेक्टर को बुलाया। सेंट फॉर मीन्स यहाँ पर बुलाना है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता था? वो एक ह्यूमन है जो रोबोट टीचर को ठीक करते हैं, उसे रिपेयर करते हैं और उसे फिट करते हैं, सेट करते हैं एज अ एज ऑफ स्टूडेंट। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो एक राउंड लिटिल मैन था, विद अ रेड फेस, लाल चेहरे के साथ, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। नोट डाउन करना, लास्ट ईयर बहुत से स्कूलों में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, किस चीज़ के साथ आया था? टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। डायल्स एंड वायर्स के साथ क्या होता है? जो भी टूल्स होते हैं बॉक्स में रखे होते हैं, मैकेनिकल हैं, इनसे जैसे पेचकस हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, प्लास है, ये सभी क्या कहलाते हैं? डायल्स एंड वायर्स एक साथ लेते हैं बॉक्स में। ही स्माइल्ड एट मार्की, उसने मार्की पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको क्या दिया था? एन एप्पल, ठीक है, हर एन एप्पल। नोट डाउन और ध्यान सुनिएगा। देन टुक, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, नोट डाउन नहीं करते हैं, देन अंडरलाइन कर लीजिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर टीचर को अकेले लिया। मार्गी हैड हॉप्ड, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये आशा नहीं थी वो किस तरीके से इसको सही करेगा दोबारा से। बट ही पुट इट टुगेदर मतलब ठीक करना। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटा और थोड़ा बाद में, देयर इट वॉज अगेन, ये फिर से ले आया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला सा और अगली मतलब बदसूरत सा, विद अ बिग स्किन। ये बातें किसके बारे में सोच रही है मार्गी? अपने कंप्यूटर स्क्रीन के बारे में। विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन दिखाए गए थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, इतना बुरा भी नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड, सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। दिख रहा आप लोगों को? मोस्ट वॉज द स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, सबसे ज़्यादा जिस पार्ट में से नफरत करती जहाँ पर होमवर्क गिवन होता था। स्लोट मीन्स होता है गिवन स्पेस, टाइम और पोजीशन। एंड टेस्ट पेपर से ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उसको ये सब लिखना पड़ता था। इन द पंच कोड में दे मेड हर लर्न, जो उसे लर्न करने को दिया जाता था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर कुछ भी समय ना लेते हुए उनको उसके मार्क्स को काउंट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, जो इंस्पेक्टर था उसने मुस्कुराया जब उसने अपना काम खत्म किया। और पेटेड मार्गीज हेड, काम खत्म हुआ, मार्गी के हेड पे उसने पैटेड किया। पैटेड मीन्स होता है, पैटेड मीन्स होता है हल्के से थपथपाना किसी को हाथ से। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, हर मार्गी की, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं थी। मिसेज जॉन्स, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्गीज मदर? मिसेज जॉन्स, यू शुड रिमेंबर, याद रखना, अंडरलाइन कर लीजिए, मिसेज जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी सेक्टर तो ज़्यादा गियर्ड अप हो गया था। गियर्ड टू का मीन्स होता है एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। एडजस्टेड अ पर्टिकुलर लेवल, वो थोड़ा सा आगे हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप, कितने 10 साल के बच्चे का हो गया था। इट स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, 10 साल के बच्चे के बराबर मैंने कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में उसकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री मतलब ठीक ठाक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी हेड को पेटेड किया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग
दे वुड टेक द टीचर अवे अलटुगेदर। वो आशा कर रही थी कि टीचर को लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमिस टीचर, एक बार वो लोग टॉमी के टीचर को लेके चले गए थे। अवे फॉर नियरली मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। रिमेंबर अगेन, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि एक बार हिस्ट्री सेक्टर कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था। ब्लैंक्ड आउट मीन्स यहाँ पे मिट गया था, ये खराब हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा था, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, तो स्कूल के बारे में क्यों लोग लिखते थे। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसको देखा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर मीन्स सीनियर, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारे प्रकार स्कूल नहीं थे। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने ज़माने के स्कूल थे। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पुरानी बात थी ये। हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ईयर को। ही एडेड लॉफ्टली, उसने लॉफ्टली मीन्स यहाँ हियर इन अ सुपीरियर वे, एक मोर मतलब उसके अंदर जीनियस ने था कि वो 13 साल का, उसकी ज़्यादा जानकारी है। जब थोड़ी सी आपको ज़्यादा जानकारी होती तो आप थोड़ा सा प्राउड टोन में आपके आ जाता है कि हाँ आपको तो ज़्यादा पता है। जैसे आप क्लास में हैं, आपको एक चैप्टर आप ये पहले से रीड कर चुके हो, टीचर जब एक्सप्लेन करे, आप टीचर ने कुछ पॉइंट या कोई टॉपिक इसमें से पूछा, आपने पहले से बताना शुरू कर दिया, तो आपको लगेगा कि आप तो ज़्यादा सुपीरियर हैं बाकी बच्चों से। इसलिए अच्छा, हम लोग जब अपने क्लास में पढ़ते थे तो पहले से ही रीड करके घर से जाते थे। आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं होता है कि वो रीड करें, वो यूट्यूब पे तो देख लेंगे स्टोरी को, बट रीड नहीं करते। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार घर पे रीड करना चाहिए। स्टोरी देखना अच्छी बात है, बट रीड जरूर करिए। रीड करने से जो हियरिंग, अब लिसनिंग से क्या होता है, आपके अंदर पहुँच गया, जब आप रीड आउट करते हैं तो रीड आउट से ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है। जब अगर आपको टाइम मिल जाता है तो रीड आउट जरूर कीजिए। Now, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing मतलब प्रोनाउंस करना, उच्चारण करना, the word carefully. Centuries ago, और धीरे से बोलते हुए, centuries ago. Century is a time of 100 years. Margie was hurt. मार्गी को दुख पहुंचा था। वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता वो किस प्रकार स्कूल उस समय हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, उसने रेड किया, बुक को पढ़ा था। बुक ओवर हिज शोल्डर, उसके शोल्डर के ऊपर। फॉर अ वाइल, उस समय के कुछ समय के लिए। देन सेड, तब का एनीवे दे हैड अ टीचर, क्या उनके पास टीचर भी हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर, हाँ उनके पास टीचर हुआ करते थे, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे। रेगुलर मीन्स हियर नॉर्मल, ऑफ द यूजुअल काइंड, ठीक है। यूजुअल काइंड मीन्स जैसे रोबोटिक या फिर कंप्यूटर वाले टीचर, टेक्निकल टीचर। इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी हुआ करते थे। अ मैन, एक आदमी, सरप्राइजिंगली विद अ क्वेश्चन मार्क। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है भाई, उस बच्ची ने पूछा। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, just told the boys, ऐसा कहा गया। He just told, उसने तुरंत बताया। The boys and girls things and gave them homework and asked them questions. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. क्वेश्चंस भी पूछा करते थे, होमवर्क भी देते थे। 7th पैराग्राफ, अ मैन isn't स्मार्ट इनफ, आदमी इतना स्मार्ट कहाँ होता है। श्योर ही इज़, हाँ वो होता भाई। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा टीचर से ज़्यादा जानते हैं, जो कंप्यूटर टीचर है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटा, बेटा मीन्स हियर इनफॉर्मल है, बेटिव इन फास्ट स्पीच। आई एम श्योर, ओके, मतलब बेटा, नॉट बेचा, ठीक है, बेचा। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा करने के लिए या फिर डिस्कशन के लिए।
शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, उसने ये कहा कि मैं किसी अजनबी को अपने घर में पढ़ने के लिए नहीं बुला सकती। टॉमी स्क्रीम्ड, वो चीख पड़ा विद द लाफ्टर, हंसते हुए, यू डोंट नो मच, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स वो घरों में नहीं रहते, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल किड्स वेंट देयर, उनके पास एक खास प्रकार की बिल्डिंग होती थी और वहाँ पर बच्चे जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। सी और इफ़ दे वर द सेम एज, क्या वो एक ही एज के होते थे? बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। मेरी मम्मी कहती हैं कि जो टीचर हैं वो एडजस्टेड किए जा सकते हैं बच्चों के, लड़के लड़की के दिमाग के अनुसार, और ये वैसे ही टीच करते हैं प्रत्येक बच्चे को जिस तरीके से, सॉरी, किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, क्या वो जस्ट द सेम मीन्स यहाँ पर जैसे कि पहले होता था, दे डिडंट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे, इट दैट वे इस तरीके से, उस तरीके से, देन तब, मीन्स इस लाइन के फिर समझिएगा प्लीज़। जस्ट द सेम दे, जैसे कि दे डिडंट डू इट, वो उसको नहीं करते थे, डेट वे देन, उस समय इस चीज़ को। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब को मत पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन टॉमी ने बोली मार्गी के लिए, और यहाँ पे मार्गी कहती है, आई डिडंट लाइक इट, मैंने नहीं कहा था कि मुझे पसंद नहीं थी। मार्गी सेड क्विकली, उसने जल्दी से रिप्लाई किया, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी फनी स्कूल्स के बारे में। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, जब मार्गी की माँ ने उसको बुलाया था कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है, तो वो आधी भी बुक नहीं खत्म कर पाए थे। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, उसने ऊपर देखते हुए कहा, नहीं मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, अब मिसेस जॉन्स कहा था अब हो गया है, एंड इट्स अ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है। वन मिनट, सॉरी आई डिड नॉट सी। Tommy said, Margie said to Tommy, can I read the... Okay. Now, Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? क्या मैं तुम्हारे साथ और अधिक बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? 9th पैराग्राफ में भी हाँ। He said, नॉन चैलेंट्री मीन्स होता है ज़्यादा इंटरेस्ट ना देते हुए, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ना होते, मतलब ऊपरी दिखावे से। ठीक है, जैसे आपका मन नहीं किसी काम करने में और कोई आता है कहता है भाई कर लो, तो आप इंटरेस्टेड नहीं होते फिर भी कर लेते हैं, उस सेंस में नॉन चैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो बाहर चला गया सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड विनीथ हिज आर्म, टक्ड विनीथ मतलब होता है उसने पकड़ रखी थी इस तरीके से, हिज आर्म के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में चली गई थी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम के आगे ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, अपने आप ही ऑन हो जाता था प्रत्येक समय, एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और संडे के अलावा। You look this picture, here is a keyboard, here is a Margie sitting, this is a robot, this is a teacher, computer teacher, or many other things, technical things are kept there. Because her mother said little girls learned better if they learned at the regular hours. उसकी माँ ने कहा था कि लड़कियां अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर क्लास लेती हैं, इट मीन्स वो बराबर पढ़ती हैं तो वो अच्छे से सीख सकती हैं। द स्किन वॉज लिट अप, स्किन
lit up हो गई थी मतलब चलने लगी थी या चलने लगी थी। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। किस बारे में लेसन था? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। डू रिमेंबर, क्या आपको याद है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सभी को पता होगा। बीइंग 9th क्लास स्टूडेंट, प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट मीन्स डालिए, इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर स्लॉट जिसमें मैथमेटिक्स का वर्क डाला जाता है या फिर अदर वर्क डाला जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग स्लॉट हुआ करते हैं कंप्यूटर में। मार्क डिड सो विदाई साइंस, एक आह के साथ, मतलब नॉट वेरी हैप्पी, जब आप खुश नहीं होते तो आह भरते हैं, ठीक है करना ही है इस सेंस में। मार्क डिड सो विदाई, उसने दुख के साथ, या फिर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन दैट इन डूइंग दैट वर्क। शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, वो उस समय वो स्कूल के बारे में, पुराने स्कूल में सोची। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वो जब हुआ करते जब उसके दादाजी छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द स्कूल होल नेबरहुड ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, सारे नेबरहुड के बच्चे आया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में यह प्लेस जो मैदान था वहाँ पर खेला करते थे, शाउटिंग करते थे, लाफिंग करते। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम स्कूल में बैठा करते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, शाम को वो स्कूल से घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीज़ें सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, और इस प्रकार से वे होमवर्क में एक दूसरे से मदद कर सकते तो बातें करते थे इसके बारे में। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होते थे वो पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. This is written by Ishaq Asimov. Now, here we have finished our chapter. आज हमें अपना चैप्टर ख़त्म करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वगैरह फिल चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। लिंक प्रोवाइड कर देंगे हम आपको, उसमें इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।